Okay, let's start now. I think we have done up to experiment number 3 in the manual. Have you guys done the various characteristics of Zener diode as well as PN diode? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so this is the next experiment. According to the assignment, this is experiment number 3, but according to the manual provided, this is experiment number 4. तो अगर आपने जेनर डायोड और पीएन डायोड की एक ही फाइल सबमिट की है, then you will name it as experiment number 3. So in this experiment, we will study the operation of diode rectifier circuit, and we will draw their input and output waveforms. Okay, so I think you may have studied the rectifiers in your class. आपके इस क्लास में कवर हो चुका है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so two types of rectifier we will study. One is half wave rectifier and another is full wave rectifier. In half wave rectifier, we will study one circuit, and in full wave rectifier, we will study two circuits. One will be your center tapped transformer, and another one will be the bridge rectifier. So what you have to do is design these three circuits one by one, apply some input signal, and take the output. Okay, so this is the first circuit, half wave rectifier. It's consisting of one diode, one resistor, and we have connected one transformer also. So what you can do is you do it in two ways. First, connect the diode and resistor as shown in the figure. Now take two type of supplies. For one circuit, take simple 6-volt AC supply, sinusoidal signal, and observe the output across the resistor. Second method is use a simple use a center tap transformer, but connect the center part of that to the this point at the resistor, and this सेकेंडरी कोइल्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम डायोड पे कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो हमारे दोनों तरीके से हम इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, यूजिंग द ट्रांसफार्मर ऑल्सो, यूजिंग द नॉर्मल पावर सप्लाई ऑल्सो. ट्रांसफार्मर को हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वी विल बी गोइंग टू यूज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. So with the same transformer, we can provide supply to the half wave rectifier also as well as to the full wave rectifier. तो आप पहले सिंपल सप्लाई लीजिए, ये कनेक्शन कीजिए एंड ट्राई टू चेक द आउटपुट, वो आपकी क्या आती है. ठीक है, गो टू द मल्टी सिम, ओपन योर अकाउंट एंड डिजाइन न्यू सर्किट. Excuse me, sir. Yes, Yes. Saksham, you want to say something? सर वो मेरा ना पीसी खराब हो गया सर, उस पे मैं फाइल भी नहीं सबमिट कर पाया अभी. अभी और कैसे अभी करोगे मैं सर? ये भी नहीं कर पाऊंगा सर अभी तो. एक बार मोबाइल में चला के देखो. मोबाइल में. अच्छा ठीक है सर. हाँ, थोड़ा मतलब उसको टच स्क्रीन जो इंटरफेस है वो थोड़ा उतना कंफर्टेबल तो नहीं होगा, बट अब जो है उससे एक बार काम चलाएंगे. सर यस सर ये मेरा फर्स्ट लैब लेक्चर है पीसी का, ओके. तो आप थोड़ा So, कुछ बता दो. what you can do is you go to the website multisim.com. ओके सर. Okay, and you go there and first set up your account, create your account. सर वेबसाइट क्या थी? Go to the multisim.com, it will ask you to sign up for an account. ओके सर. So create your account using an email ID, and it will ask for the name of the school, name of the college, etc. Fill all those details, and it will send a verification link on your email ID. सर Okay, so first set up this account, then tell me.
if you guys are using the transformer, then it will ask you the turns ratio. You just click on the transformer and there you will find the turns ratio. So right now it is 10 to 1. I have applied 220 volt 50 hertz. That is the household power supply. So if I want 10 volt, I will simply write 22 here. So the output at the secondary will be 220 divided by 22. If you want 6 volt, then similar to that, you can change the turns ratio. Okay, once you do that, now you just simply have to connect to probe and run it. Okay, can you guys see the output? Hello, can you guys see the Yes, output? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So your output should look like something this. आपका जो पीक वोल्टेज इसमें है यहाँ पे 0.7 के आसपास का डिफरेंस सर आना एक चाहिए. बार स्कीमेटिक डायग्राम फिर से दिखाना. Schematic diagram. Okay. सर आपने एसी वोल्टेज चेंज की थी उसको लगाने के बाद? Yes, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 वोल्ट था. यस तो मैंने उसको जो है वो हाउस होल्ड में जो हमारे आते हैं 220 वोल्ट उतना कर दिया था. सर अकाउंट तो बना लिया. Okay, अकाउंट बना लिया. Now you will find an icon name as create circuit. टॉप राइट कॉर्नर में देखिए जहां आपका नाम लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखी हुई है, वहां पे यस सर. क्या लिखा वहाँ पे? क्रिएट सर्किट मिलेगा. यस सर. हाँ, नाउ क्लिक ऑन दैट एंड यू विल फाइंड ए स्क्रीन लाइक दिस, जिसमें आपके कुछ ग्रिड्स बने होंगे और लेफ्ट में एक पैनल होगा जहाँ से कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो. एक्सक्यूज मी सर. यस, सर टर्न रेशियो कितनी रखनी है? टर्न रेशियो आप देखिए, अगर आपको 6 वोल्ट आउटपुट चाहिए और 220 वोल्ट दिया हुआ है तो कितना लोगे, उसी हिसाब से चेक कीजिए. आपको आप 12 वोल्ट पे भी ले सकते हो. आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें शायद 6 वोल्ट दिया हुआ है. सर आ गया इस टाइप की स्क्रीन है. आगे ना, नाउ टू योर लेफ्ट यू विल सी ए पैनल. यस सर. दीपिका प्लीज गाइड हिम. Yes, sir. Share your screen. सर आप वो मैंने मोबाइल आप पे चलाया. मोबाइल पे चलाया हुआ है. कहाँ पर पहुंच गए आप बच्चे? मैम वो खुल गया इस टाइप की स्क्रीन. इस टाइप की जी, सर. लेफ्ट साइड पे आपके आइकन दिए हुए हैं. ये वोल्टेज ग्राउंड लेफ्ट साइड में देख रहे हो बिल्कुल. यस मैम. यस मैम. तो यहाँ से आप जो भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है, कैपेसिटर की वैल्यू लेनी है, डायोड लेना है और जो भी आपको पावर सप्लाई लेनी है वो लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं सिंबल्स. जस्ट वहां ma'am. से उठाओ, जस्ट ड्रॉप इट ऑन द स्क्रीन. स्कीमेटिक जहाँ पर है तो वहां पर उठाओ उधर से एंड पुट इट ओवर देयर. और उनको कनेक्ट करने के लिए या तो आप वहां पर एक सिंबल आएगा लाइक डॉट आएगी, उसके पास जाओ. अदरवाइज जहाँ पर आपका ग्राउंड बना हुआ है, ग्राउंड का सिंबल है सेकंड नंबर पे, वहीं पर एक जंक्शन का Yes, ma'am. सिंबल भी है, उस पे उसको क्लिक करो एंड जॉइन दीज बिटवीन द डायोड रेजिस्टेंस एंड द वायर्स है ना जिसके थ्रू ज्वाइन करना. विद द हेल्प ऑफ जंक्शन आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, पहले ज्वाइनिंग पार्ट ये कंप्लीट करो.
देन वी विल टेल यू कि वोल्टेज देन आपको क्या है, जहां पर आपको जितनी वोल्टेज पावर सप्लाई देनी है वो आपको देखना है कि हाँ आपने कितनी पावर सप्लाई दी है इनपुट पे आउटपुट पे। तो ये वोल्टेज सिंपल है जो ग्रीन में दिया हुआ है सन एंड ब्लू में, तो ये आपका ऊपर सबसे ऊपर वाला वोल्टेज वाला सिंबल है। यहाँ से आप देख सकते हो कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट पे दे रहे हो, एंड फॉर दैट आपको एक रेफरेंस वोल्टेज भी लेनी पड़ती है। बट सिंस हेयर हमने ग्राउंड दे रखा है तो नो नीड टू टेक अ रेफरेंस वन। तो रेफरेंस उसी के लिए होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो। आप 0 दे रहे हो यहाँ पर ग्राउंड, तो नो नीड टू टेक द रेफरेंस वन। अदरवाइज इनपुट में एक वोल्टेज दे दो एंड आउटपुट पे एक वोल्टेज दे दो, वो कनेक्ट कर दो, वायर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ड्रॉ द सर्किट। थैंक यू। एंड आज म्यूजिक कौन प्ले कर रहा था? 2-3 लोगों को तो मैंने देख लिया था, बट हाँ गाइस आप लोग की आदेश शहल म्यूट करो। पहली बात, जो भी म्यूजिक बजा रहा है एंड वॉट एवर यू आर डूइंग वो दिख जाता है जो भी पर्सन कर रहा है। 3-4 लोगों के नाम मैंने नोट कर लिए जो भी ये काम कर रहा था। इट्स योर फर्स्ट ईयर, सो बेटर कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ हुआ देन सी इट विल बी वेरी बैड फॉर यू गाइस। कोई दिक्कत है आस्क अस। 2 लोग हैं यहाँ पर, टीचर भी है एंड टीएस भी हैं, तो स्टिल अगर आप ऐसी हरकतें करोगे दैट्स वेरी बैड। मैम हाँ जी, मैम मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं? हाँ शेयर करो। मैम आपको दिख रहा है? मैम वो फोन पे कर रही थी और कोई बात नहीं। मल्टी सिम लैपटॉप पे। मैम ये ना आ नहीं रहा है। आउटपुट पे रेंज चेंज करो बच्चे। आउटपुट पे जो आपने ग्राफ बनाया ना, चेंज देयर रेंज। राइट हैंड साइड पे जाके लिमिट चेंज करो। आपने टर्न्स कितने दिए हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पे? 22। 22, तो -22 से +22 तक करो। मैम ये एस टर्न्स देखो यहाँ पर ना ये Go to है। the grapher and in the grapher change the limit. यस सर। सर यू नॉट Go to the ऑडिबल। grapher. अगर ये जो स्कीमेटिक दिया हुआ है ना, जहां पर आपने ट्रांसफॉर्मर है उस पर क्लिक करोगे, देन राइट हैंड साइड पे नीचे, हाँ जहां पर आप जा रहे हो ना नीचे की साइड ड्रॉप करो, ड्रॉप इट। हाँ नीचे की साइड जाओ, यहाँ पर लिमिट्स है वो सेट करो वोल्टेज। मैक्सिमम मिनिमम हाँ वोल्टेज की। हाँ जी मैम कितनी करनी है? आपने 22 दिया ना, तो -22 से +22 करो। 10 दिया है बच्चे आपने, तो -10 से +10 कर लो। आपने 10 दिया है। अच्छा देखो यहाँ पर ना आपके एक ट्रांसफॉर्मर है, दैट इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आपका ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो क्लास में, V1/V2 = N1/N2, ठीक है? तो N1/N2 = V1/V2। तो वॉट एवर वोल्टेज यू आर गिविंग एट द इनपुट साइड, लाइक यू आर गिविंग, सर ने बताया था 220 वोल्ट, तो आपका 220 वोल्ट हो गया V1। देन वॉट एवर वोल्टेज यू वांट टू गेट एट द इन द आउटपुट साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दैट इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करो। एक लिखा आ रहा है आपका पी टर्न एंड एक लिखा आ रहा है आपका एस टर्न। पी टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एस टर्न्स मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो आपका जितनी आपको वोल्टेज चाहिए एट द आउटपुट साइड, अकॉर्डिंगली यू चेंज द नंबर ऑफ टर्न्स। Suppose you want to get a V1/V2, so you are giving at the input side 220 volt, give primary winding at 220. And if you are trying to change the number of turns on the secondary side, then turn, if you want to get a 6 volt as the output, so take the number of turns on the secondary output at the 6. Getting my point? So accordingly you can change the number of turns. मैम अभी कितने टर्न्स रखना है?
6 वोल्ट रखना है 6 वोल्ट रख लो, सर ने 10 वोल्ट बताया तो 10 कर लो, योर P और S दोनों का? प्राइमरी का अलग रखना पड़ता है अकॉर्डिंगली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V1 by V2 N2 N1 by N2 होता है ना, यस तो मैम, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स आप चेंज कर लो, प्राइमरी का भी या सेकेंडरी का भी। ठीक है मैम मैम हम्म, मैम आपने 20 आपने बोला था कि -10 to 10 रखना अपनी लिमिट, बिकॉज 10 टर्न्स चूज किए थे मैम, बट वो टर्न्स 22 ही लिए थे, और अगर मैं 22 और 22 मतलब लिमिट्स -20 to 22 करती हूँ, तो जो सर के ग्राफ का एम्पलीट्यूड था वेव का, मेरा उससे बहुत कम आ रहा है। मतलब आपने 20, तो आपने प्राइमरी कितने रखे थे? मैम प्राइमरी 22 और सेकेंडरी तो 1 पे ही है। हाँ तो वो उसके अकॉर्डिंग 22:1 का रेशियो ले रहा है ना वो फिर। हाँ अच्छा, तो उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड आ, ठीक है मैम, ठीक है। So what you will get at the output side, आपका कुछ ड्रॉप होता है अप्रोक्सीमेटली, आप अगर 10 आ रहा है तो 10 और 9 पॉइंट समथिंग यू विल गेट एट द आउटपुट पीक वोल्टेज एट द आउटपुट साइड। तो वो जो ड्रॉप होता है जैसे जो आप देखोगे आउटपुट साइड पे आपकी हाफ वेव, हाँ ये जो है आपकी आउटपुट साइड पे, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो आपका क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट हाफ वेव रेक्टिफायर विल डू कि आपके हाफ वेव फॉर्म ही शो करेगा, ईदर यू शो द इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ईदर यू शो इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। सो हियर यू विल से कि आपने डायोड फॉरवर्ड बायस में दिया है, तो व्हेन यू विल अप्लाई पॉजिटिव सिग्नल टू इट, then it will act as a short circuit and will allow the current to pass through it. If you will apply the negative half cycle, then it will act as an open circuit and will not allow the current to pass through it. And if you will reverse bias the circuit, then it will allow the negative voltage to pass through it, and the positive side it will act as an open circuit. So आप यहाँ कर रहे हो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो, तो आप दोगे तो डायोड की कट वो होती है कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 and 0.7, तो उतनी वोल्टेज का आपका ड्रॉप आएगा यहाँ पर, दैट यू कैन सी कि 0.7 के बाद आपकी डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगी। ये जो ड्रॉप आ रहा है आपका डिक्रीमेंट आ रही है, आउटपुट कम है, दैट इज द ब्लू साइड, ये डिक्रीमेंट आपकी जस्ट बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द डायोड। गेटिंग द पॉइंट? मैम मेरा हो गया, मैं एक बार शो कर सकता हूँ स्क्रीन पे? मैम इज इट विजिबल? विजिबल। मैम ये तो स्कीमेटिक है और ग्राफ ये आ गया। ठीक है, ओके ठीक है ना मैम? आप वही हो जो नए वाले हो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन? मैम मैं यश। यश, ओके यश, ओके मैम मेरा भी हो गया, मैं दिखाऊं एक बार? हाँ देखो। ये मैम वो स्कीमेटिक है और ये Okay. ग्राफ है। गुड। मैम मेरा भी देख लो एक बारी। हाँ जी। ओके ओके गुड। जिन्होंने कर लिया है वो एक बार जस्ट फॉर योर चेकिंग अपने आप देखने के लिए ट्रांसफार्मर की जगह नॉर्मल पावर सप्लाई लगा के देख लीजिए, ठीक है? 6 वोल्ट की सप्लाई लगा के देख लीजिए, तो उससे भी आपके आउटपुट जो है वो सेम रहेगी। सर फ्रीक्वेंसी वही रखनी है 50 हर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी भी वो भी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है सर। ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। मेरे को चेक कर लो एक बार। देखो ओके आपने 1 दिया है, आपने इनपुट पर 220 वोल्ट ही चेंज किया ना बच्चे? 1 वोल्ट पे ले रहे हो आप, ठीक है? आपका वही वोल्टेज 0.3 उतना ही आएगा, 0.3 0.4 के आसपास, ठीक है? पर चेंज कर लो, बेटर है 220 वोल्ट। वैल्यूज दी का हुई है इससे बच्चे वो चेंज करोगे ना तुम यहाँ पर पावर सप्लाई में, जो आपने इधर दिया हुआ एसी वोल्टेज दे रहे हो आप 1 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज। हाँ जी हाँ जी।
चेंज इट टू 220 वोल्ट्स, क्योंकि वो जनरली इंडिया में इतनी यूज होती है ना 220 वोल्ट की। ओके मैम। 50 हर्ट्ज वी यूज इट। तो जिन लोगों ने चेंज कर लिया है, सर बोल रहे हैं कि अब उसको सिंपल पावर सप्लाई, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफार्मर रिमूव द ट्रांसफार्मर एंड यूज अ सिंपल पावर सप्लाई फॉर द 6 volt and see the output waveform what you are getting. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम मेरा भी चेक कर लो। हाँ जी। बच्चा रेंज चेंज करो अपनी, कितने तक लिया आपने? मैम लिमिट चेंज करो अपनी लिमिट, राइट हैंड साइड पे जाके। हाँ, इसको नीचे ले जाके, हाँ वोल्टेज लिमिट कितनी करूं? कितनी ली आपने? लिख दो इस पे। -10 और 10। -10 और 10 नहीं, वो तो आपकी आउटपुट पे। -20 करना, नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग होता है ना बच्चे। 20, हाँ देखो, बस यहाँ पर क्लिक कर दो। आपने 22 ली है तो -22 से 22 करो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम वो सिंपल वाले पे भी करके देख लिया। देख लिया, आ गया आउटपुट से? यस मैम। ओके गुड। मैम 220 वोल्ट में साइन वेव तो नहीं आ रही मैम, कुछ और ही आ रहा है, कोई ऐसी दिखा रहा है। अब ठीक आ रहा है। क्लिक करो बच्चे, कहीं पर आपका भी वो ऊपर वाला मॉडिफाई नहीं हुआ है। हाँ, सिंपल ग्राफ पे कहीं क्लिक करो। कर दिया, नहीं हो रहा, बस ये आपको राइट हैंड नहीं आ रहा है। साइड पे स्क्रीन। ओके बच्चे, वो -22, हाँ अब आया है, अब चेंज हो, ठीक है ओके। हाँ जी, कौन कह रहा था अभी? बच्चे अपना हटाओ। हाँ, कौन कह रहा था? सक्षम। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? वो साइन वेव 220 वोल्ट में साइन वेव नहीं आ रही। दिखाओ। प्राइमरी और सेकेंडरी पे कितनी वाइंडिंग दी है? पता नहीं मैम। साइन वेव ही आ रही है। ये लिमिट आपकी बहुत ज्यादा है, लिमिट चेंज करो इसको। कितने रखते हैं? हाँ, इसको ग्राफ पे क्लिक करो। ग्राफ दैट, जहां आप कह रहे हो कि साइनसोइडल वेव नहीं आ रही, उस पे, हाँ उस पे क्लिक करो। अब लिमिट चेंज करो, इसको करो तुम -220 से 220 लो, तुम्हारी उतनी आएगी। +220 आ गई अब साइड में। बस आ गई। उसको अब टर्न चेंज करके इसकी लिमिट चेंज कर 220 तक मत देना, कम कर लेना। टर्न्स कहाँ से करनी है? इस ट्रांसफार्मर पे क्लिक करोगे तो अपने आप प्राइमरी टर्न्स एंड सेकेंडरी टर्न्स लिखा आ जाएगा। चेंज इट अकॉर्डिंगली। अब शेयर कर दो, हटा दो। ठीक है मैम सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैम मेरे भी एरर दिखा रहा है सर्किट में। ओके दिखाओ। मैम अभी बस फुल वेव वाला ही बोला है ना नहीं, आपने? फुल वेव भी करना है। हाफ वेव जिसका हो जाए सिंपल वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ भी, देन वो लोग फुल वेव ड्रॉ करो। वो फर्स्ट वन सेंटर टेप करना, फिर बाद में ब्रेस करेंगे। पहले सेंटर टेप करो। मैम हाँ जी मनन, बोलो। मैम आदित्य। ओके मैम हाँ। मेरा चेक करना मैम, शेयर स्क्रीन करें। या विजिबल 220 दे रखा है बच्चे, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न चेंज करो। 20 और 22 रखो। हाँ, चेंज कर दिया। 220 कितनी ले रहे हो आप? 22 बोला था सर ने, 22 ले लो। स्टार्टिंग नहीं, एक प्राइमरी अलग लेना है और सेकेंडरी अलग लेना है।
22 और 1 का ले लो, 22 लो प्राइमरी में और 1 ले लो उसका। मैम ये दो इंडक्टर कपल्ड इंडक्टर्स हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है। बच्चे ये जब आप प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी दे दोगे एंड सेकेंडरी में टर्न्स कम दे दोगे, देन इट विल बी अ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इंडक्टर्स के मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि एक ट्रांसफार्मर का एक और है वो सर्किट में। कहाँ पे है? अच्छा गलत लिया हुआ है क्या? हाँ। ओके दिखाना बच्चा, आपने कौन सा लिया है? ये मैम कपल्ड इंडक्टर्स हैं शायद, पहले दिखाना मैंने आप भी ये लेफ्ट हैंड गलती साइड कर में आपने कौन सा लिया है सिंबल? स्टॉप करके देखो। वो स्टॉप रजिस्टर पे जा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हाँ आपने इंडक्टर्स लिया, एल प्राइमरी और एल सेकेंडरी दिखा रहा है बच्चे, गलत ले रखा है। अभी पूछ हाँ इसको रजिस्टर पे जा। ऊपर ऊपर इधर ट्रांसफार्मर है ये सबसे लास्ट में। अब यहाँ पर लो 1P 1S वाला, और नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाला सेंटर टेप है। ओके अब चेंज करो और बंद करो इसको, चेंज करो। उसमें देख लिया करो बच्चे, एल लिखा हुआ था ना, दैट वाज फॉर इंडक्टर। हाँ जिस बच्चे ने बताया था दैट वाज राइट कि हाँ इंडक्टर्स है। हाँ एनीवन एल्स? जिस सबका हो गया ना, अब तो आप मैम मेरा रह गया। मैम प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मनन पहले तुम बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऋतिक रुक जाओ 1 मिनट। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं मैम वेट अ सेकंड। मैम एक जिन बार लोगों मेरा ने चेक कर लिया है वो सेंटर टैप करना स्टार्ट करें। मैम एक बार मेरा चेक कर लो। दिखाओ दिखाओ। हो रही है स्क्रीन शेयर। बच्चे इसकी लिमिट थोड़ी कम रखो। आपने कितना लिया? -10 to 10 रखो अपने। कितनी 6 लिया आपने? किस चीज की लिमिट? इस लिमिट चेंज कर दो राइट हैंड साइड पे जाके। वोल्टेज वाली? वोल्टेज, हाँ वोल्टेज के लिए -10 से 10 लेना, पता चले कितनी ले रखी है आपने। हाँ -10 से 10। ओके ठीक है। नेक्स्ट कौन था जिसको मैंने बोला था बाद में आ जाना? ऋतिक। मैम ऋतिक। यस मैम। मैम हो रही है? मैम ये ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म दिखाओ। क्या मैम? आउटपुट वेवफॉर्म। आप ही हो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर एक ट्रायंगल सा बना रहा है। इससे भी लेफ्ट, इससे भी लेफ्ट। ये वाला? हाँ ये है रन के लिए। रन करो इसको, क्लिक करो। ठीक है, अब एक स्प्लिट स्क्रीन, रुको अभी होने दो। एक स्प्लिट स्क्रीन लिखी आ रही है ऊपर, स्प्लिट, उस पर क्लिक करो। ये वाली? ठीक है, ये आपकी सिमुलेशन रन हो रही है। ठीक है, अब आप एक काम करो, स्टॉप करो। जो आपका दो वो आ रहे हैं पैरेलल लाइंस ही आ रही है, उन पे जाके स्टॉप करो। हाँ
ठीक है, अब इस पे क्लिक करो जहां पर आपका एक ग्राफ सर्किट है। हाँ, इस पे क्लिक करना, ग्राफ। हाँ, ठीक है। एक ऊपर एक सेटिंग जैसा सिंबल आ रहा है बना हुआ, यस मैम। इस पे क्लिक करो। अब नीचे जाओ, यहाँ पर -22 यहाँ पर दो, यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम है। नहीं नहीं बच्चे, वोल्टेज पे, वोल्टेज वैल्यू क्या देना मैम यहाँ पे? दो, -220 से +220 तक। प्लस वो ऑटोमेटिक ले लेता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब ये वापस उस पर क्लिक करो, अब रन करो फिर से सिमुलेशन। ठीक है, अब क्या है इसकी डिविजन्स पर से इंक्रीज करो, जो टाइम पर डिवीजन लिखा आ रहा है। यस मैम। इसको थोड़ा इंक्रीज करना थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है, बस 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 रुको। अब क्या है, इसको स्टॉप करो। अब ये स्क्वायर वाला जो बना रहा है ना एक सिंबल, उस पर क्लिक करो, पूरा रन स्टॉप कर दो सिमुलेशन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड का आ गया सिंबल बना हुआ। यहाँ पर क्या आपको क्या करना है, अब फिर से वापस ग्राफिक सर्किट पे जाओ। नहीं नहीं, स्केमेटिक स्केमेटिक। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर जहां पर आपका सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग, इस पे क्लिक करो, आपका ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर जहां आपने स्कीमेटिक में बनाया है, इस पे क्लिक करो। T1। हाँ मैम ये भी कपल आपने भी यही इंडक्टर काम है। किया है, आपने भी कपल इंडक्टर लिया है बच्चे। इसको डिलीट करो। मैम हाँ जी मैम मेरा फुल वेव का भी बन गया, बस मैं एक क्या मिनट। दिखा दूं? यहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसके नीचे यहाँ पर ऊपर लिखा रहा ट्रांसफार्मर। नो ऊपर, हाँ यस मैम। क्लिक करो, ये 1P1S वाला लो। यहाँ पे रख। हाँ ठीक है, रख दिया आपने। अब इसके अकॉर्डिंगली जब इस पे क्लिक करोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न चेंज करो, 222 और 1 ले लो। ठीक है, प्राइमरी पे 22 और सेकेंडरी पे 1 ले लो। तो उसके अकॉर्डिंग आप, जहां पर मैंने लिमिट चेंज करवाई थी ना 220, तो वहां पर -222 से 22 कर लेना और आउटपुट वेवफॉर्म आ जाएगी। अब स्टॉप कर दो शेयर। हाँ जी, कौन कह रहा था करो फुल वेव वाला? मैं कह रहा था मैम, एक सेकंड। हाँ अब जी, मेरा भी हो गया, मैं इसकी बात कर दूं। मैम मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है। विजिबल है हम्म। मैम? ये तो स्कीमेटिक है और ग्राफर ये है। ठीक है, ठीक है मैम। फुल वेव है। फुल वेव में क्या होता है, आपका दोनों पे कंडक्ट करेगा। डायग्राम पे जाना बच्चे। ये देखो आपका एक सेंटर टेप है, इसमें क्या है, ऊपर वाला जो है दैट इज द फॉर, जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे, व्हेन यू विल अप्लाई द पॉजिटिव वोल्टेज, तो आपका D1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू जो मिडिल वाला दैट इज सेंटर टेप, मतलब 0 वोल्ट है, वहां पर कुछ भी नहीं है। जब आप नेगेटिव सप्लाई दोगे तो क्या होगा, आपका नेगेटिव ऊपर तो पॉजिटिव नीचे, तो D2 कंडक्ट करेगा। मतलब आपका एक बार में पॉजिटिव में एक D1 कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव में D2 कंडक्ट कर रहा है, मतलब दोनों पे कंडक्ट करेगा। अब जब आपका दोनों पे कंडक्शन होगा तो पॉजिटिव में भी एज वेल एज नेगेटिव में आपकी वोल्टेज कंडक्ट करेगा। तो मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों हाफ साइकिल में कंडक्ट होगा और दोनों में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। ठीक है, अगर आप सिंबल रिवर्स कर दोगे देन अपोजिट आ जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करना शुरू कर देगा दोनों में। मैं स्टॉप कर दूं मैम फिर? हाँ स्टॉप कर। तो मैम अभी इसको फिर एक सिंपल वाले में भी बना के देखो एक बार। देख लो, होगा नहीं ये सिंपल से, क्योंकि सेंटर टेप है ना, 2 डायोड बनाए हैं। सिंपल में या तो आपको ग्राउंड करके करना पड़ेगा। नहीं मैम, वो व्हीटस्टोन बना के हो जाएगा ना, वो ब्रिज टाइप। तो हाँ ब्रिज वाला करो फिर, अब ब्रिज वाला होगा, वो 4 डायोड की है। मैम हाँ जी, और इस मैम अब शेयर एक करो मिनट, स्क्रीन दोबारा। हाँ करो, शेयर करो। मैम
अब ठीक है। ये आपका हाफ वेव है ना? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, स्टॉप कर दो शेयरिंग। सर कुछ कह रहे हैं वो उसमें। अच्छा हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर में आपने भी देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा D1 डायोड कंडक्ट करता है और नेगेटिव है D2। नाउ यू हैव टू थिंक कि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है, बट स्टिल वी आर गेटिंग द आउटपुट इन द पॉजिटिव पार्ट। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ही टाइम पे हमारे जो आउटपुट है वो ऊपरी क्यों मिल रही है? जिसको पता हो वो बताए। सर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो तो फिक्स्ड ही है ना सर रेजिस्टर के अक्रॉस? हाँ, so the direction of the current through the resistor that will tell us the polarity of the output voltage that we will get। तो आपके जो उसके अंदर करंट है फुल वेव रेक्टिफायर में ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, चाहे आप सेंटर टैप रेक्टिफायर बनाए ट्रांसफार्मर से बनाए, चाहे आप ब्रिज रेक्टिफायर से बनाए, कनेक्शन आपके इस तरीके से होने चाहिए कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम रहे। सर मैं बस 2 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। Okay, can you guys see the screen now? Yes, sir. Okay, so this is the circuit for your full wave rectifier using center tap transformer. Okay, now if you have done the simple circuit, what you do, you simply connect a capacitor in parallel to the resistor। जहाँ पे भी आपका रजिस्टर लगा हुआ है उसके पैरेलल में आप एक कैपेसिटर लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपका थोड़ा एडवांस पार्ट है, जस्ट फॉर दी क्लैरिटी कि आप डीसी आउटपुट कैसे ले रहे हो रेक्टिफायर में, क्योंकि अभी ये भी आपकी सबमिट आउटपुट तो रजिस्टर वाला ही करना है ना? हाँ, सबमिट आपको रजिस्टर वाला ही करना है। ठीक है। ठीक है, आप लगा के एक बार चेक कीजिए और रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा के रखना। रजिस्टर को रखना 100 किलो ओम के आसपास और कैपेसिटर को रखना 10 माइक्रोफैराड या 50 माइक्रोफैराड के आसपास। उसके बाद अब आउटपुट जब ऑब्जर्व करोगे देन यू विल सी दैट इट इज मोर लाइकली ऑफ डीसी आउटपुट। आपकी एसी पल्सेटिंग आउटपुट नहीं होगी, ये थोड़ी डीसी की तरफ जाएगी। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये बताइए आपने नॉर्मल सर्किट किस किस का बचा है? अगर आपने कर लिया है देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द ब्रिज रेक्टिफायर। The mine is left. ओके, कंप्लीट हो चुका है कि थोड़ा बचा है?
सर शो करना है. आई थिंक सो माय ग्राफ इज नॉट परफेक्ट. Okay, just wait a minute. Yes, now you can share. सर इसमें कैपेसिटर की कितनी वैल्यू रखनी है? 50 माइक्रोफैराड रख लो. ओके सर. Yes, share your screen now. Okay, you are using mobile phone. Just wait a minute. Yes sir. Yes sir. So this is half wave rectifier. Yes sir. तो आपने एक बार स्कीमेटिक पे जाना, फोकस करना. Okay sir. So you are also using the transformer 220 volt. Okay, आपने जो इनपुट प्रोब लगाई है ग्रीन वाली, वो आपने प्राइमरी कोयल की तरफ ही लगा दी है. तो आपकी जो इनपुट वोल्टेज है ना, वो 220 वोल्टेज साइनसॉइडल दिखा रहा है. Just delete this one and move over and connect it to the secondary coil. The green one, yes. Okay. Delete it and connect it to the It's secondary not of the tank. removing. Just पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा सिमुलेशन. Okay sir. सर फुल वेव में हमें ग्राउंड लगाना था. फुल वेव में सेंटर टाइप में बिना ग्राउंड के चल जाएगा, बट इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर यू हैव टू मेक फ्यू चेंजेस. ठीक है सर. ओके. आप एक बार कनेक्ट कीजिए. आपको कुछ दिक्कत आती है तो मेरे से. सर एक बार डायग्राम शो करना. Which one? Full wave rectifier? यस सर. Center type? यस सर. Okay. सर मेरा एक बार चेक कर लो फुल वेव वाला. सर ये आपने कैपेसिटर क्यों लगाया है? कैपेसिटर आप लगाइए, उसकी वैल्यू को चेंज बढ़ाते रहिए. 100 माइक्रोफैराड पे लेके जाइए या 100 माइक्रोफैराड डायरेक्ट ही रख दीजिए. और रजिस्टर की वैल्यू अभी आपकी शायद 1 किलो ओम है, फिर उसको 10 किलो ओम करना, फिर 100 किलो ओम करना. और हर केस में सिमुलेट करके देखो आपके आउटपुट कैसे आती है. फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैपेसिटर क्यों लगाया. Yes, now you can share. फुल वेव वाला मैम वो सिंपल उस पे व्हीटस्टोन से भी करके कर लिया एक बार. हाँ कर लिया. करो, शेयर करो. शेयर कर दो इसको. मैम इज इट विजिबल? यस, रन करो. ये रहा ग्राफ. ठीक है. कितना? आपने ग्राउंड कनेक्ट नहीं किया इसमें? हाँ, ग्राउंड नहीं कनेक्ट किया हुआ है. ग्राउंड के बिना ही आ गया था. आप देखो, आपकी एक एरर भी दिखा रहा है उधर, देखो लेफ्ट में ऑरेंज कलर में. ये सर नो ग्राउंड वाज फाउंड. एक बार ग्राउंड कनेक्ट करके देख लो, आउटपुट शायद सेम ही आएगी. रजिस्टर के एक बार ग्राउंड कनेक्ट करो, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आती है. रजिस्टर पे ना सर? रजिस्टर के कर लो या नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम. अब ये आप एक बार सोच के देखो आपको कहाँ लगाना है ग्राउंड. देखो अगर रेफरेंस लगाना पड़ेगा. रन करो. आउटपुट तो ठीक नहीं आई आपकी. नो ग्राउंड नीचे बच्चे. नीचे किधर मैम? इधर यहाँ लगाओ, देखो आउटपुट पे क्या आ रहा है. हाफ वेव बन गया. नहीं, हाफ वेव बन गया ना मैम. ओके, नाउ गो टू द स्कीमेटिक और स्प्लिट स्क्रीन करो. डू इट स्प्लिट स्क्रीन. क्या करूं सर? इसको रेफरेंस वोल्टेज ले लो यार. हाँ जी सर. स्प्लिट स्प्लिट स्क्रीन ग्राफर के पास में जो लगा हुआ है. एक सेकंड सर. यस सर. ओके, अब आपका क्या इसमें क्या डिफरेंस है इस रेक्टिफायर और इस सर्किट में और पिछले वाले में, कि नाउ यू आर जो ऑपोजिट वाली आएगी वो फिर वो लो हो रही है ना सर, जो ऑपोजिट. नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आपकी जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इनपुट आप ले रहे हो, मेजर कर रहे हो, आपकी आउटपुट उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में नहीं है.
आपकी आउटपुट है अक्रॉस द रजिस्टर, और रजिस्टर के साथ में डायरेक्ट आपकी कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में डायोड भी आता है. So what you have to do is you have to take a reference voltage also. तो जिस आइकन से आपने नॉर्मल वोल्टेज प्रोब ड्रॉप की थी, उसी आइकन से आप एक रेफरेंस वोल्टेज को सिलेक्ट कीजिए. सर आपकी Okay, stop the simulation and go to the icon from where you take the voltage probe. यस सर, इसको किधर डालूं अब? Now select the voltage reference. V reference. Now connect this. Now connect at the other end of the register. बच्चे आपने वोल्टेज का सिंबल सेम ही ले लिया, वी रेफरेंस का अलग होता है. V reference का लेना था ये. हाँ. फोर्थ वन. यस सर. ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अभी नहीं आएगा आउटपुट, अभी स्टॉप करो एक बार. अभी चाहे ग्राफर को हटा दीजिए, सिर्फ स्कीमेटिक पे आ जाओ. स्कीमेटिक. नाउ क्लिक ऑन द वोल्टेज प्रोब दैट यू हैव कनेक्टेड फॉर इनपुट मेजरमेंट. Okay, now you can see on the right side there is an icon named as a ground. Voltage reference is named as ground. Can you guys see it? इसको रेफरेंस 1 कर दूं सर? No, keep this as ground. Now go to the second probe from where you are taking the output. ये रहा सर. Now change it to reference 1. Now we will get the exact output, accurate output. Okay, आपने ग्राउंड अभी भी कनेक्ट करना है, ग्राउंड को हटाओ मत. Do not remove ground from the bottom. आप ग्राउंड को भी लगाइए. हाँ, ग्राउंड को इधर लगाएंगे तो फिर वो वही पोलैरिटी वाला इशू है. नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें. ठीक है, अब हो गया सर. हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिज रेक्टिफायर में हम उन्हीं 2 पॉइंट्स की जो हमारा कॉमन पॉइंट है ना, वो सेम नहीं है. बाकी रेक्टिफायर में क्या था कि इनपुट के लिए एक टर्मिनल हम कहीं और लगा देते थे, दूसरी जो है वो ज्यादातर केस में कॉमन रहती है. यस सर. तो इन ब्रिज रेक्टिफायर इट्स नॉट द सेम. यस सर. एनीवन एल्स, एनी डाउट इन ब्रिज रेक्टिफायर? किसी अभी बनाओ, चलो अभी है टाइम. और जिन्होंने तीनों कर लिए हैं, they can connect a capacitor in parallel to the resistor in case of all the 3 circuits: half wave, center tap, and your bridge rectifier, and then check what is the change in the output. Keep value of resistor around 10 kilo ohm and value of capacitor around 10 microfarad. उसके बाद आप बढ़ाते जाओगे तो आपको और भी ज्यादा रिफाइंड आउटपुट दिखाई देगी. कोई एक कनेक्ट करो एंड जो भी आपको चेंज आता है उसको आप शेयर स्क्रीन करके दिखाइए.
Nitali? Yes, sir. Have you completed? So full wave rectified तक हो गया. Center tap तक हो गया? Yes, sir. Okay, okay. सर Yes, सर सेंटर टैप वाला शो करूँ एक बार? करो करो. सर इज इट विजिबल? Yes, it is visible. अब सर इसमें और क्या करना है? आउटपुट आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं लेना. सर ने वो जो कैपेसिटर वाला बताया था वो वाला किया, ये वाला. नहीं हाँ, वो लेकिन उसमें भी रजिस्टर के अक्रॉस ही लीजिए आउटपुट. दो फिर वो ऊपर वाली को हटा दो, जो ब्लू वाली लगा रखी है आपने, वायलेट वाली रखो. ये वाला हटा दो सर. इसको हटा के यहाँ ले हाँ, लो ना, रेजिस्टेंस के इसको अक्रॉस ले रजिस्टर लो. के साथ में लगाओ. पहले स्टॉप करो सिमुलेशन. बच्चे आउटसाइड. नीचे ही नीचे. ओके, आपकी आउटपुट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है D2 की. देखो हाँ, इसको डिलीट करके करना पड़ेगा. ऐसे कनेक्शन सेम रहेंगे, आपको हटा के दोबारा करना पड़ेगा कनेक्शन. Okay, now hold it here. Now you can see, all of you can see that the output voltage is not pulsating output. And what's happening is the capacitor is acting as a filter right here, and it is blocking the AC content. ठीक है, तो आपको जो आउटपुट है वो कोशिश करेगा ये कि डीसी ही मिले. उसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल चीज है वो आपकी है. ओके आदित्य, स्टॉप शेयरिंग, आई विल शो इट ऑन माय स्क्रीन. Yes, can you guys see the screen? Yes sir. Yes, Okay. sir. Now what's happening is the charging and discharging time of the capacitor, that is given by RC. ठीक है, अब अगर हमने क्या किया है, रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ली हुई है, तो व्हाट विल हैपन दैट द डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर दैट विल इंक्रीज. तो जब आपकी यहाँ से आउटपुट नीचे जाना स्टार्ट करती है, जो हमारा प्रीवियस डायग्राम था उसमें हमारे जो आउटपुट जो थी वो इस तरीके से थी कि वो यहीं से ऊपर जाती थी और फिर जो है ऐसे इसी को फॉलो करती हुई नीचे आती थी. ठीक है, फिर फुल वे में फिर यहाँ से फिर आती थी ऊपर, फिर उसको नीचे चली जाती थी, ऐसे फिर ऊपर आती थी फिर नीचे आती थी. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका कैपेसिटर उसको नीचे नहीं जाने दे रहा, कैपेसिटर होल्ड करके रखता है वैल्यू को. तो उसकी वजह से आपका जैसे ही यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करने लगेगा तो बाकी चीजें नीचे जाएंगी, लेकिन कैपेसिटर की वजह से जो आपकी आउटपुट है वो इतनी मेंटेन, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज करेगा, बहुत धीरे धीरे. जैसे यहाँ पे आता है वो डिस्चार्ज करने के लिए, तभी जो है वो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइकिल आ जाता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर में. तो फिर आपका फिर से इंक्रीज करता है, फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, आगे चलता रहेगा. तो नाउ वी हैव यूज्ड one filter at the across the load resistance, and that's why we are getting output more like DC type. इसको अगर हमें और अच्छा करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, we can simply
increase the value of the capacitor or the resistance. तो अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज करें, रजिस्टर की वैल्यू को भी अगर हम एक बार और 0 लगा देते हैं, एंड नाउ वी रन इट, तो आप देखिए आपके आउटपुट जो है वो और डीसी टाइप की आ रही है। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको उसमें नहीं करना है। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करके और दिखाता हूँ कि क्या चेंज आता है। ठीक है, तो जब आप अपने थ्योरी में पढ़ेंगे उसको, अरे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर को, so you will observe two types of output, one without any filter and one with filter. तो without filter में तो आपका जो है वो सिंपल ऐसे जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे। इसमें जो है वो नीचे उस स्पीड से नहीं आएगा जिस स्पीड से नॉर्मली जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कैपेसिटर। So we will say that this type of output is having less ripple as compared to the output which we took without any capacitor. So ripples means the presence of AC content in the signal. ठीक है, और अगर हम इसको और इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो है वो रिपल कंटेंट और भी कम हो जाएगा। योर आउटपुट विल लुक लाइक मोर लाइक डीसी टाइप। ठीक है, नाउ अगर हम ये चेक करना चाहें कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसी कंटेंट इन द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, फॉर दैट वी हैव टू यूज दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, you have to calculate the DC voltage, which is average value, which comes out to be Vm divided by pi. Now all these values are without any filter, without any capacitor, and then we will calculate the RMS value of the output across the load. That comes out to be Vm by 2. Now to calculate the Vrms and V average, we integrate the output signal over a time period. Okay, and how to drive these relationships that you have studied already in your 11th or 12th, और इसमें भी आपको ये करनी होगी, तो आपकी थ्योरी में जो है वो बताई गई होंगी। अगर नहीं बताई गई तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहले वो की हुई है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा कि डीसी वैल्यू किसी भी सिग्नल का कैसे निकालते हैं और उसी की आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एंड द रेशियो ऑफ दीज टू विल गिव अस द रिपल फैक्टर। ठीक है, इट इज ए फैक्ट मेजर ऑफ द रिमेनिंग अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स इन द रेक्टिफायर आउटपुट, जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, अनदर थिंग इज पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवर्स बायसिंग दैट द डायोड विल बी एक्सपोज्ड, दैट इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। तो अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया है तो ये रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस उतनी ही हो सकती है जितनी कि आपकी इनपुट वोल्टेज हो सकती है। तो अगर आपने इनपुट वोल्टेज यहाँ पे Vm sin ओमेगा t हमने ली हुई है, ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम Vm हो सकती है, तो द पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर दिस टाइप ऑफ सर्किट इज आल्सो Vm। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर, तो हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने इनपुट पे सप्लाई दी थी 220 वोल्ट यहाँ पे। ठीक है, और हमने, अगर आपने टर्न्स का रेशियो रखा है 22, so that means output will be 10 volt. Now this 10 volt output that will be distributed along the secondary of the transformer. ठीक है, जैसे यहाँ पे टर्न्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से पता चलता है कि कितनी वोल्टेज रहेगी। तो यहाँ पे पूरी कोयल में इनपुट पे आपकी 220 वोल्ट है, इसमें पूरी कोयल में आपकी 10 वोल्ट है, लेकिन हमने रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया है, हम यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, इसको हमने 0 रेफर किया है। तो इसको अगर आप 0 रेफर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी +5, और यहाँ पर
इसको 0 मानोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी माइनस। तो आप ध्यान से देखना, आपने टर्न्स का रेशियो सेम लिया होगा जो आपने इसमें लिया था और जो आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में लिया था, लेकिन इस फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपको आउटपुट जो इनपुट जो मिल रही होगी वो 5 वोल्ट मिल रही होगी, पीक वोल्टेज जो यहाँ पे आपको मिली होगी ना वो 5 वोल्टेज मिली होगी, दिस वन इनपुट के लिए ही, और फिर उसी हिसाब से हमारी आपको आउटपुट मिली होगी जो एक इससे थोड़ी सी कम रहती है नीचे। तो इस केस में आप ये देखिए जो डायोड के पास पीक इनवर्स वोल्टेज है वो हो सकती है -5। तो हमारी इनपुट जो थी वो थी 10 वोल्टेज पीक टू पीक, बट नाउ आउटपुट वी आर गेटिंग इज माइनस ऑफ सॉरी हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो उसमें आपकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो आपकी सॉरी ट्वाइस हो जाएगी, हाफ नहीं, क्योंकि -10 है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज जो इसको एक्सपोज हो सकती है वो ट्वाइस ऑफ द इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज हम 5 मानेंगे, इसको जो एक्सपोज होगा वो 10 होगा। ठीक इसी तरीके से आपका ब्रिज रेक्टिफायर में निकालना है आपको कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। इसमें हमने कोई ट्रांसफार्मर लगाया नहीं है, सिंपली एसी इनपुट लगाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे कुछ इसकी ऑब्जर्वेशन है तीनों सर्किट। ठीक है, तो आपको मैनुअल के अंदर तीनों सर्किट स्कीमेटिक डायग्राम, तीनों की वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म्स विदाउट एनी कैपेसिटर, विद कैपेसिटर आप लगाना चाहते हो दैट इज अप टू यू। ठीक है, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच ऑफ देम, और स्टार्टिंग आप ये जरूर लिख देना व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी आप लोग कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर यस सर ये फुल वेव रेक्टिफायर में सर जब हम ग्राउंड को हटा देते हैं तब सर ये -5 से बढ़ जाती है इनपुट वोल्टेज ग्राफ में। हाँ हाँ सर ये क्यों हो रहा है? और सर जो इनपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव में सर 5 से कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी के ऊपर आपकी जो दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। वो आपने 22:1 का रेशियो लिया है, तो द सेकेंडरी पे आपको 10 वोल्ट मिलेगा, एंड टू एंड मिलेगा वो, लेकिन 10 वोल्ट एंड टू एंड आपको 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब आप ग्राउंड कनेक्ट कर रहे हो सेंटर टैप पे, सेंटर में, तो सेंटर से ऊपर भी आपकी नंबर ऑफ टर्न्स आधी रहेगी, सेंटर से नीचे भी नंबर ऑफ टर्न्स आधी रहेगी, तो उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी जो है वो ऊपर उतनी ही मिलेगी। जब आप इसकी हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन की वो देखोगे वीडियो, उसमें देखना सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे लिखा होता है, उसमें शायद हमने 6 वोल्ट वाला यूज किया था, तो उसमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बाहर ही लिखा होता है 6, 0 एंड -6। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जहाँ से हम ये सेंटर वाली वायर निकाल रहे हैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दोगे तो ये भी वोल्टेज उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी, बट द फैक्ट इज एंड टू एंड आपका जो है वो फिक्स रहेगा। इस केस में आपका 12 है, आपने अगर 22 वोल्ट 22 टर्न्स रेशियो लिया है तो वो आपका पीक टू पीक 10 वोल्ट है। ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी एक एक्टिविटी है कि आपको वो जो वीडियोस हैं वो देखनी है। ठीक है, ताकि आपको हार्डवेयर का थोड़ा पता लग जाए कि उसमें हम कैसे करते हैं कनेक्शन, कैसे आउटपुट मेजर करते हैं। उसमें अगर आपको कुछ और डाउट लगे, कुछ और क्वेश्चन लगे तो वो भी आप पूछ सकते हो। ये वाला एक्सपेरिमेंट किसी और का बचा है अभी? ये सबका हो गया? हिना, हिना मल्होत्रा। हेलो। हाँ,
Hello Hina, Sir, have you done the experiment? Okay. Roshil? सर डन। ठीक है। Excuse me, चलो sir. तो फिर अगर आप यस सर ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये इसका जो हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है वो ऐसे ही बनाना है। बीच में आई थिंक यश ने दूसरे फॉर्म में भी बनाया था जो सेकंड टाइम दिखाया था, तो वैसे भी ब्रिज बनाना है या रेक्टिफायर, फिर सिर्फ फुल वेव? फुल वे में ब्रिज रेक्टिफायर की नॉर्मल वाला? अच्छा, अब वो सेंटर ब्रिज टैप, दोनों बनाने से ब्रिज एंड नॉर्मल? हाँ हाँ, मतलब आई एम ओके सेंटर टैप भी आपने बनाना है, डिजाइन करना है मल्टी सिम पे, और ये वाला भी डिजाइन करना है। ओके सर, ओके। हाँ, इसकी फॉर्मेशन आप वो मतलब कनेक्शंस कैसे भी कर लो, ठीक है कोई सर। डाउट यहाँ लगा है कोई, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके श्योर, तो शुड वी एंड दिस मीटिंग अगर किसी को डाउट नहीं है तो? ठीक है। अच्छा, और जो स्टूडेंट लेट आए थे, जो एक नया स्टूडेंट आया था, आप उसके लिए है कि आप जो बाकी के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी यस इसी सर। तरीके से करने हैं। तो आप जो जहाँ से ये मैनुअल मिली आपको वहीं पे आप जाना, कोर्स की वेबसाइट ओके पे सर। जाओगे, वहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाएगी। मल्टी सिम की वीडियो भी डाली गई है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड की, तो आप उस पे ओके देख सर। के उसके हिसाब से प्लॉट बना सकते हो। ठीक है, आपके लिए आप थोड़ा लेट तक सबमिट कर सकते हो फाइल, बाकियों के लिए जो है वो नेक्स्ट लैब से पहले तक का टाइम। थैंक यू सर। ओके। Okay, now I am ending the meeting.